Okay, so the current fall in rupee from the levels of around 50 to the levels of around 67, 68 is obviously most relevant topic for us, given that we have done foreign exchange right now and derivative right now. Okay? Normally, it is unfortunate that our exams are designed in such a manner that current market condition से exam के paper को कोई मतलब नहीं है. ठीक है? Actually, क्या हो रहा है बाजार में उससे तुमको पेपर देते समय कोई मतलब नहीं है. However, as a student जब अपने सेम टॉपिक पढ़ते हैं और इतना ज़्यादा बात चल रहा है तो मन में आता है फिर उस पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या, when we cannot relate to it. ठीक है? तो उस fill in the blanks को fill करने के लिए I am carrying out the discussion in the context of what has been covered in class. So then you will see a bridge between class discussion and between real life. ठीक है? Of course there will be certain new things जो कि syllabus में एकदम भी covered नहीं है. ठीक है? Firstly, I have, while teaching foreign exchange, tried to explain to you all that when $1 is equal to say 50, Indians should not be patriotically hurt by it. कि $1 इक्वल टू 50, वो लोग आता है यहाँ पे 50 रुपया ले लेता है, हम लोग जाते हैं 50 के बदले 1 मिलता है. मैंने क्लास पे बोला था कि ये एकदम भी मन में नहीं लाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली द वर्थ ऑफ मनी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज. रुपया हो, डॉलर हो, पाउंड हो, क्या काम आएगा गुड्स खरीदने में. तो इफ इंडियन गुड्स आर 50 times as costly as US goods, if Indian goods are 50 times as costly as US goods, तो in that case क्या US वाले को यहाँ आके कन्वर्ट करने में बेनिफिट हो रहा है? नहीं. US वाला $1 यहाँ लाया, 50 में कन्वर्ट किया, और जब सामान खरीदने गया बाजार में तो वही खरीद पाया ना जो वहाँ $1 में मिलता. तो सामान तो वही मिला उसको. इंडियन आदमी 50 रुपया लेके वहाँ गया, उसको $1 मिला, वो सामान तो वही खरीद पाया जो यहाँ 50 रुपया का आता. ठीक है? तो आप लोग के पढ़ने के बाद इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपको वो हर्टिंग लगे कि $1 इक्वल टू 50 क्यों. द लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट डज नॉट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है? तो इट वॉज टॉट इन PPP when we did purchasing power parity. Now, studies have been conducted. There is statistical evidence which shows that India में on an average goods are 80 times costlier than US. 80 times. तो 80 example नहीं बोल रहा हूँ, quote कर रहा हूँ. 80 times. Which means that rupee dollar exchange rate, real effective exchange rate, जो real होता है ना REER, the real effective exchange rate word copy में used है अपने. ठीक है? तो real effective exchange rate होना चाहिए $1 equal to 80, and this is long overdue for around 3-4 years. तो एक्चुअली डॉलर रूपी का रेट 80 चलना चाहिए एज पर PPP, बट चल रहा था अराउंड 50. तो इसका मतलब रूपी वॉज ग्रॉसली ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड? क्या नहीं सुना? ओवर वैल्यूड. डॉलर वॉज अंडर वैल्यूड ना. डॉलर का रेट होना चाहिए था 80, चल रहा क्या था 50. तो रूपी का रेट 1/80 होना चाहिए था, चल रहा था 1/50. रूपी वॉज ग्रॉसली ओवर वैल्यूड and the correction was due. So the correction from 50 to 67 which has taken place was inevitable. It had to happen, and further correction from this level to 80 is inevitable. It has to happen. Nobody can prevent that. What we are concerned about is the pace of the correction. The speed at which 50 से 67 हुआ is alarming. The direction at which जो हुआ it is not alarming, because PPP के अनुसार ये होना ही चाहिए, and in the long term PPP holds good. तो रूपी शुड हैव फॉलन. सेकेंडली, केवल मीडिया न्यूज़पेपर में पढ़ के रूपी गिर रहा है तो अपने को लगता है अपने गिर रहे हैं. मतलब इट इज़ सच अ स्टूपिड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स. चाइना रन्स अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स्ड, वो अपने करेंसी को पैक कर रखा है डॉलर के अगेंस्ट में. फिक्स्ड, डिमांड सप्लाई कुछ भी हो फिक्स कर रखा है. इंडिया फॉलोज अ डर्टी फ्लोटिंग रेट सिस्टम है, बट RBI स्टैंड्स to intervene to prevent too much volatility in the exchange rate market. India में rupee dollar exchange rate is determined by demand supply, but RBI stands to prevent too much volatility. So it's a managed float. China जो है, say 3 years ago, when China 3 years ago, for 20 years, it has enjoyed decades of economic growth and progress. Chinese currency should have appreciated. ठीक है? तो चाइना का करेंसी बढ़ना चाहिए था, बट चाइना जो सेंट्रल बैंक है, जो गवर्नमेंट है, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करके करेंसी को बढ़ने नहीं दिया, चाइनीज़ युआन को. तो अगर चाइनीज़ करेंसी बढ़ना चाहिए था और उसको बढ़ने नहीं दिया, तो एक तरह से चाइनीज़ युआन वाज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड.
It should have gone up. It was not allowed to go up. And then the entire world, including India, was complaining and throwing fingers on China that आप जानबूझ के अपने करेंसी को अंडर वैल्यू कर रखे हो एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए. करेंसी अगर चीपर रहेगा तब तो एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा हो पाएगा ना. फॉर अस माने फॉर फॉरेनर्स आवर गुड्स बिकम चीपर. तो चाइना वॉज डेलिबरेटली अंडर वैल्यूइंग इट्स करेंसी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स. तो वहाँ पे अपने उन लोग पे चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे अपना करेंसी जो ओवर वैल्यूड है 50-52 के लेवल पे और वो अब जाके गिर रहा है और अब जाके करेक्ट स्टेटस पे पहुँच रहा है. तो अच्छा है ना, अपना एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा. अपना करेंसी ओवर वैल्यूड है, अगर वो करेक्ट होके गिर रहा है तो अपना एक्सपोर्ट्स तो अट्रैक्टिव ही होगा. तो व्हाट डू वी वांट एट द एंड ऑफ द डे? दूसरे नेशंस अपने करेंसी को गिरा रखे हैं तो हम लोग बोलते हैं क्यों गिरा रखे, देख जानबूझ के. और हमारा करेंसी जब गिर रहा है तो हम लोग दुख हो रहे हैं कि हम लोग गिर रहे हैं. मतलब इट शुड बी अ होप टू रिजॉइस ना कि अपना एक्सपोर्ट्स जो अनकॉम्पिटिटिव है बिकॉज ऑफ करेंसी, कम से कम वो रीजन तो हट जाएगा एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स विल ग्रो. तो वेदर यू टॉक अबाउट IT कंपनी लाइक इन्फोसिस, TCS, वेदर यू टॉक अबाउट क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डीज, टेक्सटाइल कंपनीज, दोज हु आर एक्सपोर्टर्स, दे आर इमेंसली गेनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द रूपी फॉल. ठीक है, तो यू शुड नॉट टेक इट दैट वे. रूपी का फॉल hurts importers, hurts import of capital equipment, causes inflation. It's very painful for the economy. Okay, households, businesses are not able to adjust to this fast pace of fall. However, it also benefits certain sector. तो sectoral biases को मन से हटा दे तो in that case there is no cause for feeling the pain in rupee falling. Okay, तो नंबर 1 आई कम्युनिकेट दैट. तो मैंने 2 चीज़ कम्युनिकेट किया है अभी. नंबर 1 एक्सचेंज रेट का लेवल से कोई मतलब ही नहीं होता. और नंबर 2 रूपी को तो 80 लेवल पे गिरना ही था बिकॉज ऑफ PPP, बट वो बहुत स्पीड से गिरा, उसके बारे में कंसर्न है. और आपको दुखी नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर वो गिरा तो अच्छा ही तो अपना एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा इंप्रूव होगा, इंपोर्ट्स हर्ट होगा, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल सफ़र. ठीक है, बट लेट दे टॉक. नाउ 1991 में जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन का बैंड वैगन पकड़ा, उसका रीज़न वॉज नॉट अ चॉइस, इट वॉज अ कंपल्शन. मतलब इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली सोच के हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोग लिबरलाइज करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे बिकॉज बढ़िया होता है, ऐसा नहीं हुआ था. अपने कंट्री में क्या है ना, ये जो इंडियन साइकी है, जब प्रॉब्लम आता है ना और फेस नहीं हो पाता तभी जाके एक्शन लिया जाता है. अपना केस देख लेते हैं. अभी मई 2015, नवंबर 2015 में एग्जाम ड्यू है. अभी लॉ ऑडिट ये सब कौन पढ़ेगा? आराम से ज़िंदगी चलने दो. SFM में भी कभी आए नहीं आए वापस तो रिपीट अलाउड है, नो इश्यूज़. और जब जाके वो जो 4 महीना 5 महीना 6 महीना जब आएगा ना तब जाके सब जागेगा. ठीक है, तो मतलब ये कॉम्प्लेसेंसी अपने सिस्टम में इनबिल्ट है. तो 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, इट हैपेंड बिकॉज एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकेम वर्चुअली बैंकरप्ट. Government of India, I'm not talking about India incorporation. Government of India, it had to put gold with the IMF and take borrowing subject to an extensive reform package, which included privatization and so on and so forth. ठीक है, PSU का divestment. उसके बाद से लेके अभी तक 2013 तक, if we leave apart minor bips and all that, 20 साल तक इंडिया में वी हैव enjoyed economic growth and prosperity, because of which we feel that as chartered accountants perhaps we have good jobs in hand, good work in hand. ठीक है, तो ये 20 सालों में prosperity हुआ because of that decision taken, and the decision was taken out of choice or compulsion. ठीक है, the same state of affairs occurs right now, although it is not totally comparable, because आज के दिन गवर्नमेंट bankrupt या गवर्नमेंट insolvent नहीं है. Some of the companies like Tisco, Hindalco, who are having a lot of ECBs, external commercial borrowing in their balance sheet, they are fiercely hurt. वो लोग डॉलर बोरिंग लिए थे $500 मिलियन का, जब रेट 50 था, आज के दिन 67 हो गया, तो मार्क टू मार्केट करने में वो लोग का PL हिट लेगा. तो वो लोग को प्रॉब्लम है, बट द ब्लीडिंग इज नॉट एट द गवर्नमेंट लेवल. ठीक है, तो वी विश काश ऐसा हो कि रूपी और जैसे वो बोल रहा हूँ डिप्रिशिएट करे 80 तक, स्टॉक मार्केट और निफ्टी जो है 4500 तक गिरे. बिकॉज अगर ऐसा हुआ एंड बाय द टाइम द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट, ठीक है, नेक्स्ट ईयर द गवर्नमेंट विच विल इमर्ज विल फेस अ क्राइसिस सिचुएशन. और फिर से जब क्राइसिस सिचुएशन फेस करता है तभी कुछ करता है. ठीक है, तो तब जाके दे विल गो इनटू अ सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड उसके बाद जाके नेक्स्ट 20 ईयर्स 2034 में विल लुक बैक फॉर द पास्ट 20 ईयर्स एंड सी दैट ये 20 ईयर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन 2014. ठीक है, तो मतलब वी विश काश ऐसा हो, एकदम ब्लीडिंग हो मार्केट में, ओके, हालत खराब हो जाए जिससे वो रिफॉर्म्स पैकेज किया जाए. ठीक है, नाउ कमिंग टू मोर टेक्निकल एंगल्स,
There is a conspiracy theory going around, conspiracy theory. This theory says that 1978 से लेके अभी तक there have been around 8 general elections, and in 6 of those general elections, rupee has fallen by more than 15% in the election year. 8 में से 6 बार इलेक्शन ईयर में रूपी 15% से ज़्यादा टूटा है. अगर ये कोइंसिडेंस है तो कोइंसिडेंस है, और अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है तो क्या है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. सारा ब्लैक मनी विच इज़ पार्क्ड आउटसाइड, ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन फंडिंग, वो मनी, वो डॉलर्स जो बाहर पार्क्ड है, वो 50 के रेट पे आए तो मज़ा आए कि 70 के रेट पे आए तो मज़ा आए. 70 के रेट पे तो वो मज़ा ले रहे हैं ना. So you never know, policy making and all that is geared and maneuvered in such a manner that home currency depreciates in the election year, and all that black money comes at a higher exchange rate, funding all the election campaign. Perhaps this could be true. ठीक है, कि ये one of the factors हो सकता है जो कि deliberately designed है. ठीक है, तो उसके बाद इंडिया में we have current account deficit, perpetually current account deficit. I am talking about the balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट कम से कम 11-12 लेवल पे तो नाम सुना होगा. सीए ज्वाइन करने के बाद सब नाम भुला दिए इकोनॉमिक्स का. बट बीओपी वाज समथिंग, इट वाज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बीओपी. उस पर करंट अकाउंट होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कैपिटल अकाउंट होता है एफडीआई एफआईआई, एफडीआई एंड एफआईआई. इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट है. आवर इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स. Our imports are more than exports for obvious reasons. Reasons being them that अपना exports competitive नहीं है. We are not able to compete in terms of exports. उसका एक कारण तो है रूपी ओवरवैल्यूएशन जो मैं शुरू में बोला, और दूसरा कारण जो ये सब है वो है कि अपने पास जो यहाँ पे लेबर लॉज है, जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोई हालत में वर्ल्ड से कंपेरेबल नहीं है. तो वी आर सिटिंग ऑन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. जब तक ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दूर नहीं होगी, आवर एक्सपोर्ट्स कैन नेवर एक्सीड इम्पोर्ट. ठीक है, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट है मोटा मोटी. हिस्टोरिकली इट रिमेन्ड एट अराउंड 3-4% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट. और जब से हमने लिबरलाइजेशन किया 1991 से, तब से इंडिया हैज़ बिन रिसीविंग कैपिटल अकाउंट इनफ्लोस. ओके, स्टॉक मार्केट्स में, डेट मार्केट में कैपिटल फ्लोज आया है. तो करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इसके कारण अपना एक्सचेंज रेट काफ़ी स्टेबल रहा है. आई रिपीट, करंट अकाउंट डेफिसिट तो रूपी शुड व्हाट, फॉल. कैपिटल अकाउंट सरप्लस तो रूपी शुड व्हाट, राइज. दिस डेफिसिट एंड सरप्लस दे बैलेंस्ड, एंड वी हैव हैड अ हेल्दी स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. हिस्टोरिकली थ्राइस इट हैज़ हैपेंड, 3 बार ऐसा हुआ है आज तक, जब इंडिया में कैपिटल अकाउंट आउटफ्लोज हो गया. आउटफ्लोज तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो है ही, और कैपिटल भी आउटफ्लो हो गया, तो डबल डेफिसिट. तो उस केस में रूपी हैज़ फॉलन इनॉर्मसली. वंस इट हैपेंड इन 1998 एट द टाइम ऑफ समथिंग कॉल्ड साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस. उस समय ऐसा हुआ था, कैपिटल फ्लाइट. सेकेंड टाइम इट हैपेंड इन 2001 एट द टाइम ऑफ द .com बबल केतन पारेख स्कैम, when there was a flight of capital. Third time it happened in 2008 after the Lehman Brothers collapse, that there was a flight of capital. और जब जब capital outflow हुआ है, तो current account deficit coupled with capital account outflow, there has been immense rupee depreciation. अब इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का तो एक ही तरीका है कि हमारा करंट अकाउंट क्या होना पड़ेगा, सरप्लस. अगर करंट अकाउंट सरप्लस है, तब जाके हम लोग कैपिटल अकाउंट का आउटफ्लोज को रोक के रूपी को स्टेबल कर पाएंगे. ठीक है, तो और करंट अकाउंट सरप्लस कैसे करें? एक्सपोर्ट हैज टू बी मोर देन व्हाट, इंपोर्ट. ठीक है, तो एंड दैट आई सेड इज ऑन अकाउंट ऑफ सम शॉर्ट टर्म रीजन और सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. Structural. So structural problems are the responsibility of the central bank, Reserve Bank of India, or the responsibility of the government, the fiscal side. Fiscal side. RBI cannot do with structural problems. It can do CRR, it can do this or that. It cannot deal with structural infrastructural issues. You know that day before yesterday, new governor RBI का Raghuram has joined office. उसके पहले वाला गवर्नर सुब्बाराव was excessively criticized in whatever he has done. ठीक है, तो but that criticism was wrong because of the fact that what can RBI do if there are structural problems in the system. Now, मैंने जो mention किया, एक 1998 का साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस, एक 2001 का केतन पारेख और 2008 का लेमन. इस पे कम से कम 1998 का जरा सा आइडिया इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन टोटल पर्सपेक्टिव.
1998-97 में क्या हुआ था, जो एशियन टाइगर्स है लाइक इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, दे ओपनड देयर इकोनॉमीज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. इंडिया रिमेन्ड इट क्लोज्ड. तो वहाँ पे ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल आया and that capital resulted in double-digit growth rate of those economies. So Malaysia, Indonesia, they locked a growth rate of around 15-20% of GDP. India was at that time languishing at growth rate of around 3-4% of GDP. Everybody was complaining that India क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं. However, in a free-flowing economy, money moves from one country to another only to earn higher risk-adjusted return. पैसा मूव करेगा ओनली बिकॉज हायर रिटर्न दिखा. तो वो लोग को दिखा कि मलेशिया, इंडोनेशिया खोला है, चलो रिटर्न कमाएंगे, वो लोग पुट इन किया. बट मलेशिया, इंडोनेशिया का इकोनॉमीज वीक था, उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स था, उसके कारण वो रिटर्न्स आया नहीं. और जब नहीं आया तो एवरीबडी विथड्रू दे मनी. ये जो पैसा उठाया जाता है ना किसी बाजार से, इसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल और स्पेक्युलेटिव कैपिटल अटैक ऑन द इकोनॉमी. इतना जोर का वो स्पेक्युलेटिव कैपिटल अटैक होता है कि सेंट्रल बैंक अपना पूरा रिजर्व्स खाली कर दे तब भी उसको रोक नहीं पाएगा. तो वो मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ पे करेंसी उस समय 20-20, 30-30% गिरा था. एंड दे हैड टू इम्पोज कैपिटल कर्व्स, फ्रीजिंग, जो पैसा नहीं मिलेगा, उस टाइप का चीज़. इंडिया उस समय बच गया था. तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, RBI वॉज प्रेज्ड दैट इट इज़ गुड दैट इंडिया डिड नॉट ओपन अप इट्स कैपिटल अकाउंट ऑन अ प्री मेच्योर बेसिस व्हेन इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. दैट वॉज गुड, ठीक है. तो उस समय हर मार्केट से पैसा टना था, इंडिया से भी कुछ टना, रूपी फेल, बट वो लोग तो ब्लीड किए थे मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज. अभी क्या हुआ है, ये पूरे के पूरे दौरान 1991 के बाद और खासकर 2000 के बाद, इंडिया हैज़ बीन द बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FII इनफ्लोस. US हैज़ बीन फॉलोइंग एन अल्ट्रा चीप मॉनेटरी पॉलिसी. मतलब US में सिंस रिसेशन हुआ है 2008 से, तो वो लोग इंटरेस्ट रेट कट करता गया, करके जीरो पे पहुंचा दी है. तो आपने किए ना क्लास में कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या था, एक करेंसी से बोरो करो, दूसरे में इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके जो आने वाला उसको फॉरवर्ड सेल करो. तो सब जन क्या किया है, US से करीब 0%, 0.5% पे पैसा उठाते हैं, उठा के इंडियन डेट मार्केट में 7-8% पे लगाते हैं, और वहां पे डिफरेंशियल 6% कमाते हैं. तो all the foreign investors, all the FIIs, they have been picking money from US, investing it in emerging markets like India. ठीक है. तो India has been the biggest recipient of such capital inflows. Now, May 17th या 18th में US government announced and UK Bank of England announced that they are seeing signs of recovery. उन लोग के इकोनॉमी में they are seeing signs of recovery. जॉबलेस क्लेम्स होता है वहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कम होते जा रहा है. तो दे therefore announced that इस साल के एंड में दे विल टेपर क्वांटिटेटिव ईजिंग. टेपर क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है मनी सप्लाई बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट गिराना. तो वो लोग बोले हम लोग ये बंद करने वाले, अब हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करेंगे. जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही ऑल द फॉरेन इन्वेस्टर्स हु वर picking money from there and investing over here to earn the differential interest rate, they were taken aback. And they stopped doing that and they started taking back the money. और कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा उठाएंगे, वहीं से जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगाएं. ठीक है. तो इंडिया वॉज सपोज टू ब्लीड. ठीक है. तो कैपिटल इनफ्लो बंद हो गया, आउटफ्लो और ज़्यादा हो गया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद द गवर्नमेंट दे टुक 3 or 4 एक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग इट, कि एज एफ रोक लेगा. आज तक जिंदगी में कोई भी रोकने की कोशिश किया ना, कैपिटल आउटफ्लोज को रोक नहीं पाया. माने फोर्स के साथ वो नहीं रुक सकता है, वो तो होना ही है. तो इन्होंने, यू मस्ट हैव हर्ड दैट, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया. ठीक है. बहुत चीज़ का इंपोर्ट बैन कर दिया, टेलीविजन वगैरह सब बैंकॉक से लाता रहता है ना, सिंगापुर से, वो सब बैन कर दिया. तो दे टुक 3 or 4 एक्शंस. उसमें से इन्होंने और एक एक्शन लिया था. ये जो नए बैंक्स हैं ना, जैसे कोटक बैंक, येस बैंक, IDB, दीज बैंक्स डू नॉट हैव अ डिपॉजिट बेस. इनके पास ब्रांचेस और डिपॉजिट ज़्यादा नहीं है. और जो स्टेट रन बैंक्स है, SBI, बैंक ऑफ राजस्थान, बीकानेर, ये लोग का तो डिपॉजिट्स खुद बहुत बढ़िया है. तो जो न्यू एज बैंक्स हैं, इनके पास खुद का पैसा है नहीं, ये लोग RBI से हर बार बोरो करते हैं एट अ रेट कॉल्ड द MCR रेट, मार्जिनल क्रेडिट रेट. RBI ने उस रेट को बढ़ा दिया. क्यों बढ़ा दिया? बिकॉज US वाला अगर वहाँ रेट बढ़ाएगा और RBI भी रेट बढ़ाएगा तो वो डिफरेंशियल फिर से आ जाएगा ना आर्बिट्राज का. तो RBI ने 3% वो रेट बढ़ा दिया समटाइम्स इन अगस्त. दे इंक्रीज दैट रेट. तो एज सुन एज दे इंक्रीज दैट रेट,
everybody was taken aback that what is it up to. एक तो इंटरेस्ट रेट यहाँ बढ़ गया, एंड यू नो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड प्राइसेस फॉल. तो जो बैंक्स है, जिन लोगों का बॉन्ड पोर्टफोलियो इतना लंबा चौड़ा है, उनका तो एकदम पीएल अकाउंट हिट हो जाएगा. तो ऑल द बैंक्स, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, दिस एंड दैट वे सोल्ड. तो अपने निफ्टी में, सेंसेक्स में करीबन 20-22% इनका वेट है. तो जब बैंक्स का सेलिंग हुआ तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट. उसको फर्दर रोकने के लिए व्हाट आरबीआई डिड, इट फर्स्ट टाइम ब्रॉट कैपिटल कंट्रोल्स. मतलब कैपिटल कंट्रोल, 3-4 तो कैपिटल कंट्रोल्स लाया था कि इंडियन कंपनीज लोग फॉरेन एक्विजिशन का लिमिट कर दिया, नहीं कर सकते. इंडियंस अगर बाहर में इन्वेस्ट करते हैं उसका लिमिट कर दिया. जैसे ही वो कैपिटल कंट्रोल्स किया तो इंडियंस पे, फॉरेनर्स लोग को लगा कि यार ये तो उसी चीज़ पे उतर गया है जो सब जन उतरता है ना, कर्ब्स लगाना. जब सह नहीं पाता है तो बोलता है जब सब बंद. तो ऑल्दो ये लोग फॉरेनर्स के लिए कुछ नहीं किया था, इंडियंस के लिए किया था, बट डर लगा के लगता है आगे जाके पता नहीं क्या क्या कर देगा. वो डर के कारण देयर वाज अ ह्यूज सेल आउट इन द मार्केट. जब मार्केट 800-900 पॉइंट गिरा था, ओके, अभी 10 दिन पहले, और फिर उसके बाद तो और गिरा है. तो दैट सेल आउट वाज बिकॉज ऑफ द फियर दैट व्हाट इज आरबीआई एंड गवर्नमेंट अप टू. ठीक है, तो दे वर टेकन अ बैक एंड एवरीबडी स्टार्टेड सेलिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स की पैसा निकाल के वहाँ रखते हैं. अपने तो मैथ्स किए हैं. सोचो स्टॉक मार्केट अगर 6000 से 5400 चल रहा है, 10% गिरा. स्टॉक मार्केट 6000 से 5400, 10% गिरा. और रूपी जो है वो 50 से 67 करीबन 18-17% हो गया. नहीं सॉरी 30% हो गया. 50 से 67 इज ऑलमोस्ट 30% फॉल. तो रूपी का 30% फॉल और इंडियन मार्केट का 10% फॉल. तो एफआईआई जो इंडिया में पैसा लगा रखा है उसका रिटर्न क्या है, -40%. रिमेंबर माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल. व्हेन यू इन्वेस्ट अब्रॉड, आप दो चीज में इन्वेस्ट करते हो, नंबर 1 इनटू द स्टॉक एंड नंबर 2 इनटू द करेंसी. तो वो लोग तो स्टॉक में लगाया वो भी गिरा, वो लोग करेंसी में लगाया वो भी गिरा. तो 10 और 30 मिलाए कितना रिटर्न हो गया, -40. इट हैज बीन अ हेवी लॉस टू एफआईआईज एज अ रिजल्ट ऑफ द रूपी डेप्रिसिएशन. ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ एनी पॉजिटिवनेस नाउ. कोई भी पॉजिटिवनेस इम्पॉसिबल अभी दिखना. एवरीथिंग इज नेगेटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, दैट्स द रिजल्ट ऑफ, दैट्स द रीजन वाई गोल्ड प्राइसेस हैव शॉट अप सो मच. Because whenever there is so much of fear and all that, people flight to safety, and the flight to safety is what? Gold. तो gold का buying has occurred so much. अभी आगे जाते हुए क्या होने वाला है, ये लोग illogical फूड सिक्योरिटी बिल, फूड कूपन्स में चालू कर दिए नौटंकी. माने जहाँ जब बजट डेफिसिट अपना अराउंड 8% ऑफ जीडीपी चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट 5% ऑफ जीडीपी चल रहा है, दे शुड टेक हार्ड एक्शंस, रिड्यूस सब्सिडीज. ठीक है, बट दे आर इंक्रीजिंग सब्सिडी का बिल. तो सब नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है. जब तक इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं आता है तब तक क्या पॉजिटिव दिख सकता है. द ओनली पॉजिटिव इज दैट अभी 18 तारीख को मीटिंग है यूएस फेडरल रिजर्व का. उसमें बाई चांस ऐसा हुआ कि यूएस फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया कि नहीं हम लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं, अभी कम ही रखेंगे, तो एक अलग बात है. पर ऐसा होने का लग रहा नहीं है, बिकॉज अभी भी 3-4 दिन में जो न्यूज़ आया है यूएस में, दिस समथिंग कॉल्ड बेज बुक, उन सब में पॉजिटिव न्यूज़ है. तो दे आर नॉट गोइंग टू माने कीप इंटरेस्ट रेट्स लो, दे आर गोइंग टू हाइक इंटरेस्ट रेट. Which means that anybody looking at markets and trying to forecast, ठीक है, is in for the next 6 months, at least this fiscal, for a very bad year. Rupee is further going to fall to levels of 75-80. Markets are further going to fall around 10-15-20% more. Value buying जो होता है ना, value buying, वो सब value buying कुछ अभी नहीं होगा. ठीक है, that value buying is very insufficient to prevent the fall of markets. Sometimes when the election results are out, तब जाके वी कुड सी दैट बहुत ब्लड बात हो गया, बहुत खराब हो गया. द न्यू गवर्नमेंट विल टेक रिफॉर्मिस्ट एटीट्यूड एंड देन ओनली दिस कैन स्टॉप. ठीक है, सो दैट इज द एंटायर थिंग. तो थिंग इज रिलेटेड टू पीपीपी, थिंग इज रिलेटेड टू आईआरपी का आर्बिट्राज. ओके, क्लास का डिस्कशन. ठीक है, ऑफकोर्स देयर इज हार्ड कोर मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट. तो अपने अनफॉर्चुनेट है कि सीएमए लेवल बड़े आईपीसीसी में और फाइनल में इको से तो मतलब ही नहीं होता है. तो बैठ के टीवी के सामने केवल दुख होता रहता है, यार तो समझ में नहीं आता. ठीक है, अपने को सीपीटी में क्या इको पढ़ा है सबको पता है, और उसके बाद तो इको है ही नहीं. तो दिस इज द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स विच इज गोइंग ऑन. आई वॉज वेरी फास्ट बिकॉज आई हैड टू इन्वेस्ट ओनली 15-20 मिनट्स. ठीक है, तो होप जो भी पूछ रहे थे उन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट मिला क्लास के लेवल पे. ओके.